تو پچھلے لیکچر میں ہم نے یہ حاصل کیے تھے اپنی بحث سے کہ اگر کوئی جسم دائرگی حرکت کرتا ہے تو اس کی چال جو ہے یہ مستقل رہ بھی سکتی ہے اور مستقل نہیں بھی رہ سکتی. مطلب دائرگی حرکت میں چال تبدیل بھی ہو سکتی ہے اور مستقل بھی رہے. یہ دو چیزوں کو لے کر دائرگی حرکت کی دو قسمیں کی جاتی ہیں. ایک وہ قسم جس میں چال مستقل رہے گی اور ایک وہ قسم جس کے اندر چال جو ہے وہ تبدیل ہوتی ہے. ایسی دائرگی حرکت جس میں ذرے کی چال مستقل ہو یکساں دائرگی حرکت ہے، اور ایسی دائرگی حرکت جس میں ذرے کی حرکت کی چال جو ہے تبدیل ہوتی رہے اس کو اپن غیر یکساں دائرگی حرکت. لہذا دائرگی حرکت کی دو قسمیں ہو گئی، یکساں دائرگی حرکت اور غیر یکساں دائرگی حرکت میں اس کی چال مستقل رہے گی اور غیر یکساں دائرگی حرکت میں جسم کی یا ذرے کی چال جو ہے یہ مسلسل تبدیل ہوتے ہیں. اب اس کی مثال اپن دیکھتے ہیں. تو یکساں دائرگی حرکت کی مثال جو ہے اس میں اپن کہہ سکتے ہیں کہ گھڑی کے کانٹے کے سرے کی حرکت یکساں دائرگی حرکت کی مثال ہے. اسی طریقے سے غیر یکساں دائرگی حرکت کی بات کریں تو جب ہم فین کو آن کرتے ہیں یا آف کرتے ہیں تو اس کے بلیڈ کے سرے کی چال جو ہوتی ہے یہ تبدیل ہوتی ہے. اس لیے فین کو آن یا آف کرتے وقت اس کے بلیڈ کے سرے کی حرکت یہ مثال ہوگی غیر یکساں. تو غیر یکساں دائرگی حرکت کی مثال ہے. ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے ہم دو قسمیں کرتے ہیں، یکساں دائرگی حرکت اور غیر یکساں دائرگی. اب یہاں پر ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ اگر کوئی جسم یکساں دائرگی حرکت کرتا ہے، مان لو ابتدا میں مقام A پر ہے اور اس کے دائرہ نما راستے کا مرکز تو مان لو ذرہ جو ہے اس سمت میں حرکت کرتا ہے. اور یہاں پر اپن بات کرتے ہیں یکساں دائرگی حرکت. مطلب یہاں پر چال جو ہے اس کی مستقل ہے، چال مستقل رہے گی. اب اپن بات کرتے ہیں رفتار کی. رفتار بولے تو لمحی رفتار کی بات کریں گے اپن پہلے. لمحی رفتار تو ہم کو معلوم ہے کہ دائرگی حرکت میں اگر کسی لمحے رفتار کی بات کریں تو اس کی سمت جو ہے یہ مماس کے اطراف ہوتی ہے. مماس کے اطراف. دائرگی حرکت میں لمحی رفتار کی سمت جو ہے مماس کے اطراف ہوتی ہے، اس لیے اسے مماسی رفتار کی کہا جاتا ہے. انگلش میں اپن اسے ٹینجنشیل ویلوسٹی کہیں گے. اب اگر اس لمحی رفتار کی سمت کی بات کریں، اگر ذرہ مقام A پر ہو تو وہ مماس کے اطراف ہوگی، مطلب اس طریقے سے ہوگی. اور اگر وہ مقام B پر ہو تو یہاں پر اگر ہم مماس لیتے ہیں تو اس کی سمت ایسی ہوگی. یہاں پر اگر اپن لیتے ہیں تو اس کی سمت ایسی مماس کے اطراف. اب یہاں پر لمحی رفتار جو ہے اس کی قدر کی بات کریں اپن تو اپنے معلوم میں رفتار کی قدر جو ہوتی ہے وہ چال ہوتی ہے، کیونکہ رفتار اور چال میں صرف سمت کا فرق ہوتا ہے. چال میں سمت نہیں آتی، صرف قدر آتی ہے، اور رفتار میں قدر اور سمت دونوں آتی ہے. تو کیونکہ چال جو ہے مستقل ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ رفتار کی قدر جو ہے یہ مستقل رہے گی، یہ مستقل رہے گی.
लेकिन अगर इसकी सिमत की बात करें, अपन सिमत की बात करें, तो ये हर लम्हा इसकी सिमत जो है ये तब्दील होते रहे, तो इसकी सिमत तब्दील होते रहे, सिमत तब्दील होते रहे। तो अगर हम यकसा दायरवी हरकत में लम्ही रफ्तार की बात करें तो इसकी कदर तो मुस्तकिल हो जाएगी, लेकिन इसकी सिमत मुसलसिल बदलती रहेगी, क्योंकि ये उस लम्हे उस मुकाम पर ममासिल अतराफ है। अब रफ्तार जो है ये सिमती मिक़दार है। हमको मालूम है कि सिमती मिक़दार में अगर कदर बदल जाए या सिमत बदल जाए या दोनों बदल जाए तो वो तबई मिक़दार बदल जाए। तो रफ्तार सिमती मिक़दार है और यहाँ पर कदर मुस्तकिल रह रही है, लेकिन सिमत तब्दील हो रही है, लिहाजा यहाँ पर रफ्तार जो है वो तब्दील होगी, और इसकी जो तब्दीली होगी वो उसकी सिमत की वजह से। इसलिए हम कहते हैं कि यकसा दायरवी हरकत में चाल तो मुस्तकिल रहेगी, लेकिन लम्ही रफ्तार जो है ये मुस्तकिल नहीं रहेगी, ये तब्दील होते रहेगी, ये तब्दील होगी, और काय की वजह से तब्दील होगी। तो लिहाजा यहाँ पर हम एक बात कह सकते हैं कि यकसा दायरवी हरकत में चाल मुस्तकिल रहेगी, रफ्तार जो है तब्दील होगी, रफ्तार की कदर मुस्तकिल रहेगी, लेकिन उसकी सिमत जो है ये मुसलसिल तब्दील होती रहेगी। अब हम बात करते हैं ज़ावियाई रफ्तार की। ज़ावियाई रफ्तार ओमेगा, ज़ावियाई रफ्तार जो है इसको अपन ओमेगा से ज़ाहिर करें। अब हम बात करते हैं इसकी कद्र की। तो अब यहाँ पर जो है चाल जो है मुस्तकिल है, लम्ही रफ्तार की कद्र मुस्तकिल है, इसलिए इसकी कद्र भी अपन बोल सकते हैं क्या रहेगी, कद्र मुस्तकिल रहेगी। सिमत की बात करते हैं तो सिमत जो है हमको मालूम है कि दायरवी हरकत में ज़ावियाई हटाओ, ज़ावियाई रफ्तार, इसकी सिमत जो है वो दाहिने हाथ के कानून से निकाली है। अगर जर्रा इस सिमत में हरकत कर रहा है, मतलब घड़ी के कांटों की मुखालिफ सिमत में हरकत कर रहा है, और अगर इसको हम दाहिने हाथ का कानून लगाते हैं, वो कानून ये है कि अगर हम सीधे हाथ की मुट्ठी इस तरह बांधें कि उंगलियां मुड़ी भी हों और अंगूठा जो है ये खिंचा हुआ, अगर उंगलियों को जर्रे की हरकत की सिमत में तरकीब दिया जाए तो खिंचा हुआ अंगूठा जो है ये रफ्तार की सिमत को जाहिर करता है। ये है दाहिने हाथ का कानून कि अगर दाहिने हाथ की मुड़ी हुई उंगलियां जर्रे की दायरवी हरकत की सिमत को जाहिर करें तो खिंचा हुआ अंगूठा ज़ावियाई रफ्तार की सिमत को जाहिर करता है। अगर दाहिने हाथ का कानून हम यहाँ पर लगाएं तो इस तरीके से लगेगा, उंगलियों को अपन ऐसा मोड़ेंगे, क्योंकि जर्रा जो है इस सिमत में हरकत कर रहा है, इसलिए उंगलियों को ऐसा मोड़ेंगे तो यहाँ पर इसकी सिमत इधर होगी। अब चाहे जर्रा ए पर हो तो भी उसकी सिमत इधर होगी, चाहे जर्रा बी पर हो तो उसकी भी सिमत इधर होगी, चाहे जर्रा सी पर हो तो भी उसकी सिमत इधर होगी। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ज़ावियाई रफ्तार की सिमत तब्दील नहीं होगी, मतलब सिमत भी जो है मुस्तकिल रहेगी, आपको बोल सकते हैं एक जैसी रहेगी। अब ये दोनों चीज़ें मुस्तकिल रह रही है, इसलिए ओमेगा जो है ये मुस्तकिल रहेगा, ये तब्दील नहीं होगा, तब्दील नहीं होगा। अब ये बहस से अपने नतीजे निकालते हैं कि अगर कोई जर्रा यकसा दायरवी हरकत करता है तो उसकी चाल मुस्तकिल रहेगी, उसकी लम्ही रफ्तार तब्दील होगी और उसकी ज़ावियाई रफ्तार जो है ये मुस्तकिल रहेगी। इन चीज़ों को लेकर हम लोग यकसा दायरवी हरकत की तारीफ यूँ भी कर सकते हैं कि अगर कोई ज़र्रा यकसा ज़ावियाई रफ्तार से दायरवी हरकत करता है तो वो हरकत यकसा दायरवी है। तो यकसा दायरवी हरकत में चाल मुस्तकिल रहेगी और ज़ावियाई रफ्तार मुस्तकिल रहेगी, लेकिन लम्ही रफ्तार जो है अपनी सिमत की वजह से तब्दील होती है। तो ये सारी बातें जो है रफ्तार को लेकर हो गई। अब रफ्तार से हम आगे बढ़े तो इस तरह आता है,
अब हम यकसा दायरवी हरकत में इसरा की बात करेंगे। अब यहाँ पर जो है लम्ही रफ्तार तब्दील हो रही है, इसलिए यहाँ पर इसकी वजह से इसरा आएगा, इसकी वजह से इसरा आएगा। अब ये लम्ही रफ्तार या ये ममासी रफ्तार है, इसकी वजह से इसरा आ रहा है, इसलिए अपन उस इसरा का नाम भी जो है ये ममासी इसरा, या इसको अपन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहेंगे, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और इसकी सिमत जो है रफ्तार की सिमत नहीं हो, मतलब ममास के अतराफ। तो अगर हम किसी लम्हे इसकी बात करें, मतलब यकसा दायरवी हरकत में लम्ही रफ्तार को बात, किसी लम्हे जो है रफ्तार की सिमत ममास के अतराफ होती है, इसलिए यहाँ पर उस लम्हे अगर इसरा लेते हैं अपन तो उसकी सिमती जो है वो ममास के अतराफ होगी, और इस इसरा को हम जो है ममासी इसरा या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ये लम्हे को लेकर बात होगी। देखो यहाँ पर थोड़ा एक जो है कंफ्यूजन अपने को होता है, अपन यहाँ पे लम्हे, एक लम्हे, एक इंस्टेंट, एक लम्हे की बात करते हैं। अब अगर अपन दायरवी हरकत की बात करें, मतलब जिस्म जो है वो दायरवी हरकत कर रहा है, यकसा दायरवी हरकत कर रहा है, और हर लम्हे उसकी रफ्तार जो है, अगर v की बात करें अपन a पर, v की बात करें b पर, v की बात करें अपन c पर, तो ये तब्दील होते रहेंगे, ये सिम की वजह से तब्दील हो। तो पूरी हरकत में भी एक इसरा आएगा। अगर जिस्म जो है यकसा दायरवी हरकत कर रहा है तो हर मुकाम पर उसकी ममासी रफ्तार बोल लो या लम्ही रफ्तार बोल लो, तब्दील होते रहेगी, इसलिए वहां पर भी एक इसरा आएगा। वहां पर जो इसरा आता है उस इसरा को हम मरकज़जू इसरा कहते हैं, मरकज़जू इसरा, इंग्लिश में इसको बोलेंगे सेंट्रीपिटल। तो अगर हम यकसा दायरवी हरकत की बात करें, मतलब कोई जिस्म जो है यकसा दायरवी हरकत कर रहा है, लम्हे की बात नहीं कर रहे हो, क्लियर, तो वहां पर भी एक इसरा आएगा। यहाँ पर जो इसरा आता है उसकी सिमत जो होती है ये मरकज की जानिब होती है, सिमत जो है ये मरकज की जानिब होती है, इसकी सिमत जो है ये मरकज की जानिब होती है। ये अपन ने 11वीं में निकाले इसको, कि अगर कोई जर्रा यकसा दायरवी हरकत करता है तो उसके अंदर एक इसरा आता है, इस इसरा की सिमत निस्कुत्र के अतराफ मरकज की जानिब होती है, और इस इसरा को हम मरकज़जू इसरा कहते हैं। तो अगर हम मुसलसिल यकसा दायरवी हरकत की बात करें तो उसमें एक इसरा आएगा, और इस इसरा की सिमत जो है निस्कुत्र के अतराफ मरकज की जानिब होगी। इसकी सिमत को लेकर इसके अपन नाम रखते हैं, मरकज की जानिब होगी, इसलिए इसे मरकज़जू कहते हैं, और ये निस्कुत्र के अतराफ होती है, इसलिए इसे टेंजेंट अपने रेडियल एक्सेलरेशन भी कहा जाता है। ठीक है, इसका ज़ाब्ता भी अपन ने जो है 11वीं क्लास में निकाले थे, और इसका ज़ाब्ता जो आया था वो आया था a = v² और यहाँ पर v जो है ये उसकी रफ्तार और r जो है ये उसके दायरे नुमा रास्ते का। अगर हम जो है उसकी कद्र की बात करें तो उसकी कद्र ये होती है a = v²/r। अब इसको अगर अपन सिमतिये की शक्ल में लिखें, सिमतिये की शक्ल, मतलब उसकी जो है सिमत को लेकर अपन अगर बात करें तो क्योंकि इसकी सिमत जो होती है निस्कुत्र के अतराफ मरकज की जानिब होती है, और हमने ये तय किए हैं कि सिमत जो बाहर की जानिब होती है वो मुस्बित होती है। जैसा कि अपन ने जो है निस्कुत्र सिमतिये के
सिंथिए की जो अपन ने बहस किए थे तो वहाँ पर अपन ने सिम तय किए थे कि अगर मरकज से बाहर की जानिब सिम होती है तो इसे मुस्बित लिया गया, लिहाजा इसकी मुखालिफ सिम अगर लें तो ये क्या होगी, मतलब इसकी सिम मनफी होगी मतलब मरकज की जानिब होगी। इसलिए यहाँ पर अगर इसको हम जो है सिंथिए की शक्ल में लिखें तो ये होगा -v² अपॉन r, और यहाँ पर अपने को एक यूनिट वेक्टर लेना पड़ेगा, इकाई सिंथिया लेना पड़ेगा, क्योंकि अपन ने देखा है 11वीं क्लास में कि अगर किसी को भी सिम देनी हो तो सिम देने के लिए हम इकाई सिंथिया का इस्तेमाल करते हैं। लिहाजा यहाँ पर r0 जो है ये इकाई सिंथिया होगा जिसकी सिमत जो है निस्बत के अतराफ मरकज की जानिब। लिहाजा अगर हम मरकज जो इसरा की बात करें तो इसकी कद्र a = v² अपॉन r होगी, और इसकी सिंथिए की शक्ल में वेक्टर की शक्ल में तो इसका ज़ाब्ता बनेगा वो वेक्टर a = -v² अपॉन r इंटू वेक्टर r0, जहाँ पर वेक्टर r0 जो है इकाई सिंथिया है, इसकी सिमत मरकज के निस्बत के अतराफ मरकज की जानिब होगी। अब यहाँ पर अपन एक चीज़ और यहाँ पर दाखिल कर देते हैं। अपने के बाद में 11वीं क्लास में अपन ने देखे हैं कि b और ओमेगा के अंदर एक ताल्लुक है, b और ओमेगा, इसमें एक ताल्लुक निकाले अपन ने 11वीं क्लास में, और ये ताल्लुक था b = r इंटू ओमेगा, ये ताल्लुक निकाले, इसको और इस्तेमाल भी किया अपन लोग b = तो ये अगर हम इस्तेमाल करें तो हम इसको v को बदल सकते हैं, v को अगर अपन बदल दें तो हम ये मरकज जो इसरा का ज़ाब्ता जो है ये अपन ओमेगा की शक्ल में भी ला सकते हैं। तो अगर हम कद्र लें, सिर्फ कद्र की बात करें तो a = क्या है v² अपॉन r, यहाँ पर अगर अपन v की जगह रखते हैं r इंटू ओमेगा तो v² क्या होगा r² ओमेगा² अपॉन r, एक r यहाँ पे कैंसिल होगा, इसलिए a = क्या आ जाएगा r इंटू ओमेगा। तो ये भी एक ज़ाब्ता जो है मरकज जो इसरा का बनता है। तो एक ज़ाब्ता जो है इसका v की शक्ल में आएगा और एक ज़ाब्ता जो है इसका ओमेगा की शक्ल में आएगा। तो अगर इसको भी हम वेक्टर की शक्ल में लिखें, सिंथिए की शक्ल में लिखें तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर a = वापस इसकी साइन क्या आएगी, r ओमेगा² इस तरीके से, और इसके साथ में अपन एक यूनिट वेक्टर लगाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम लोग यकसा दायरी हरकत में इसरा की बात कर सकते हैं। तो आज हमने जो है यकसा दायरी हरकत में चाल पर गौर किए, लम्ही रफ्तार पर गौर किए, ज़ावियाई रफ्तार पर गौर करें, लम्ही रफ्तार की वजह से इसरा पर गौर किए, ज़ावियाई रफ्तार की वजह से इसरा पर गौर किए, लम्ही हालत में भी इसरा पर गौर किए, और मुसलसिल दायरी हरकत में भी इसरा पर अपन ने गौर किया। अब यहाँ पर ये सारी बहस का जो मेन मुद्दा है वो सिर्फ आप ये याद रखेंगे, वैसा तो अपने को सभी याद रखना है, हर चीज़ जिसके अंदर कोई भी चीज़ ऐसी नहीं हो सकती जिसको अपन नज़रअंदाज कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों को जो है अपने को ज़्यादा अहमियत देनी पड़ती है। तो यहाँ पर जो है आप मरकज जो इसरा को अहमियत देंगे ज़्यादा। अहमियत ये रहेगी कि अगर कोई ज़र्रा दायरी हरकत करता है तो उसमें एक इसरा पैदा होता है, इस इसरा की सिर्फ निस्बत के अतराफ मरकज की जानिब होती है, और इस इसरा को मरकज जो इसरा कहा जाता है, जिसका ज़ाब्ता अपन ने यहाँ पर देखे तो 11वीं क्लास में निकाले थे। ये उसकी कद्र की शक्ल में हो गया, ये जो है सिंथिए की शक्ल में हो गया। इसी तरीके से अपन ने एक ज़ाब्ता और निकाले थे 11वीं क्लास में, ज़ावियाई रफ्तार और खती रफ्तार में ताल्लुक, और वो आया था b = r इंटू ओमेगा अगर कद्र की बात करें तो, और ये अगर वहाँ रखते हैं हम लोग तो इसरा का ज़ाब्ता जो है r ओमेगा² बनता है, ठीक है। तो इसको अपन जो है सिंथिए की शक्ल में भी लिख सकते हैं, ये इसरा के ताल्लुक से बात हो रही है। अब अपने को मालूम है फिज़िक्स की जो तरतीब है, हरकत की वजह से हटाव आता है, हटाव की वजह से
रफ्तार आती है, रफ्तार की वजह से इसरा आता है, और इसरा की वजह से क्या आता है ये अपने को न्यूटन ने बताया उसके दूसरे कानून में। तो कल हम न्यूटन के दूसरे कानून को लेकर इस बात को निकालेंगे कि अगर इसरा होता है तो वहाँ पर क्या होता है। ठीक है, करना बराबर। तो ये अपन इस तरह तक पहुंच गए। ठीक है, कल अपन न्यूटन का दूसरा कानून देखेंगे, याद कर जाएंगे न्यूटन का दूसरा कानून। कौन बोलेगा कल न्यूटन का दूसरा कानून? जावेद, कौन बोलेगा? दानिश बोलेगा। कल तुम सबको दानिश न्यूटन का दूसरा कानून सुनाएगा। बंद करो ना।